Hello friends, welcome to ProTalent and this is our English vocab for CLAT and IIM IPM score booster session number 11. So in this score booster module, I'm going to cover 20 important words. Remember, learning vocab is a very crucial part for your CLAT examination or IIM IPM examinations. With good knowledge of words, you will be doing wonderful things in your examination. और मेरा मानना है जो स्टूडेंट्स अच्छे से वर्ड्स को करते हैं, they are definitely getting a score which is 120 plus. So if you want to do 120 plus, do this words with me. Believe me, you'll get a lot of advantage. protalentdigital.com से आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी जहां पे इन 20 क्वेश्चंस के ऊपर हमने अच्छे क्वेश्चंस बना के रखे हैं फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस. फटाफट चालू करते हैं आज के 20 वर्ड्स. पहला वर्ड है ग्रेटिट्यूड. ओके, सो ग्रेटिफिकेशन और ग्रेशिया. ओके, सो दैट इज अ वर्ड कॉल्ड ग्रेशियस, दैट मींस थैंकफुलनेस. ओके, जहां कहीं वर्ड आया ये ग्रेट, दैट मींस thankful होना, so that is called gratitude, a feeling of thankfulness or appreciation. So persona non grata, अगर ये वर्ड आ गया persona non grata, so person who is not thankful, so that is called persona non grata. Something which is gratuitous act. Okay, so that is basically called a act which is done with thankfulness. Okay, कि भाई मैं कोई पैसों के लिए ये काम नहीं कर रहा हूं. This is what the meaning of gratuitous. Okay, so that is called gratuitous. While non-gratuitous act, that is the work to be done for money. So whenever you have a word called grata, that means, or gratia, that means about thankfulness is the answer. Next is called hankering. Okay, that means craving for it, yearning for it. मुझे और चाहिए चाहिए चाहिए. बहुत बार lot of you are craving for more videos by ProTalent, saying that sir पूरा का पूरा वीडियो डालो, रोज डालो, 3-4 डालो. This is what you are craving for it, you are yearning for it, you are wanting it. Okay, generally craving और yearning होता है कोई ऐसी अंदर की कोई फीलिंग primarily about food, about particular चीज खाने के लिए. जैसे you are craving for sweet after your food, this is called hankering. बहुत काम का वर्ड है. Okay, yearning for something or to do something or a craving for something, that is called hankering. Next word is called hegemony. बहुत काम का वर्ड है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बार यूज होगा, ध्यान रखना. hegemony is country showing domination because of economic and military might. For example, Coca-Colization of, you can say, world, or McDonaldization of world. This is called hegemony of America across the world. This is called hegemony. जब हम अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री सुप्रीमेसी लोगों को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेजेमनी. डोमिनेशन ओवर अदर्स और लीडरशिप ओवर अदर्स, दिस इज कॉल्ड हेजेमनी. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. यस, ग्रेट. अगला वर्ड है हेरेटिकल. It is characterized by departure from acceptable belief or standard, something which is not as per the policies, not as per the beliefs or standard. This is called heretical. Something which is called heretical, which means that is not as per the standard belief. Okay, for example, cannibalism is heretical. Sati Pratha is heretical in today's time. So these are basically called characterized by the departure from accepted belief. Next is called hyperbole. This is a figure of speech. Yes, figure of speech अलग अलग होती है. hyperbole होता है, ठीक है, simile होता है, alliteration होता है, irony होता है. So उनमें से one of them is called hyperbole. So फटाफट comment section में बताइए which are the various types of, you can say, types of
फिगर ऑफ स्पीच। ओके, फटाफट बताइए फिगर ऑफ स्पीच के क्या क्या टाइप्स है। ओके, हाइपरबोल क्या बोलता है? एग्जेजरेशन, कोई चीजों को और बड़ा चढ़ाकर बताना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ऊपर दुख आया है तो वो बोलता है मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम मानो थोड़ी सी डिले हो गई, सो वी से कि भाई अब तो अगले साल ही एग्जाम हो रही है, दिस इज हाउ द फीलिंग वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आजकल ये बच्चे यूज करते हैं कि ये फलाना ढिकना वीडियो है वो नेक्स्ट लेवल वीडियो है, सो दैट्स एन एक्सेजरेशन, कोई चीजों को और बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आज के जमाने में कॉमेडी इज गोइंग विद दैट हाइपरबोल। Next is called idiosyncrasy, something which is very odd, unusual and a peculiar behavior. So someone having an idiosyncratic behavior, that is very odd, unusual behavior, that is called idiosyncrasy. The idiosyncrasy, ध्यान से सुनना, the idiosyncrasy of the spy or a detective, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मजेदार से डिटेक्टिव है, शायद आपने नाम सुना होगा, फेलुदा करके। ओके, फेलुदा वाज अ फिक्शनल डिटेक्टिव, ठीक है, एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय सत्यजीत रे। फेलुदा हैड अ इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर व्हेन ही वाज गोइंग टू सर्च फॉर समथिंग। जैसे बचपन में, जब हम लोग बचपन में थे तब एक ऐसे डिटेक्टिव आता था करमचंद, ही हैड एन इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर कि वो गाजर लेता था, दैट इज कैरेट, और कैरेट कान में डालता रहता था, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर, एंड ऑड, अनयूजुअल और पिक्यूलियर बिहेवियर। आई होप दिस विल बी रिमेंबर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडोलेटरस। आइडोलेटरस दैट इज किसी को आइडोलाइज करना, किसी को आइडोलाइज करना, दैट इज आइडोल बनाना, दैट इज ब्लाइंडली उस बंदे को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड आइडोलाइज करना, वर्शिपिंग आइडॉल्स, और ब्लाइंडली और एक्सेसिवली डिवोटेड टू एडोरिंग समवन, दिस इज कॉल्ड आइडोलेटरस। ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बी आर अंबेडकर ने एक मीटिंग में, एक डिस्कशन में ये बोला था दैट इंडिया में, ठीक है, आइडोल वर्शिप दैट मीन्स किसी एक आदमी को, ठीक है, किसी एक आदमी को इतना ज्यादा बड़ा नहीं बना देना चाहिए, दिस इज व्हाट ही सेड। सो भैया ये जो भक्त लोग होते हैं, ठीक है, मोदी साहब के भक्त लोग, उनको, उनके लिए ये बिल्कुल इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड आइडोलाइज करना किसी को, दैट इज आइडोलेटरस, ब्लाइंडली फॉलोइंग समवन। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड इल्यूजरी। इल्यूजरी का मतलब होता है डिसेप्टिव, लैकिंग विच इज नॉट समथिंग इन रियलिटी बट इट इज एक तरीके के डिसीव करना, धोखा देना, मिराज बोलते हैं जिसको, ठीक है, मिराज। जैसे आप देखते हैं जब गर्मी के समय में आप रोड पे से जाते हैं तो रोड के ऊपर आपको दूर पानी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मिराज, ठीक है। जैसे आप डेजर्ट में गए, डेजर्ट में आपको दूर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिराज। इल्यूजरी और मिसलीडिंग, कभी कभार उसको क्या बोलते हैं, मिसलीडिंग। नेक्स्ट इज कॉल्ड इमिनेंट। Imminent is something about to happen, and there is a word called eminent. Eminent personality, that means ऐसा person जो famous है, he is an eminent personality, he is a famous personality, while imminent is something which is about to happen, that is called imminent. Okay, so there is an imminent threat when you are playing with tiger. Okay, so it is going to happen for sure, that is called imminent, while eminent is famous. Okay, आगे बढ़ते हैं। impassive. Okay, so this is called passive. Passive is एक तरीके से छुपा हुआ होना, impassive is not very active, ध्यान रखना, it is revealing no emotions, it is apathetic, indifferent होना, कोई तरीके की मन में फीलिंग नहीं होना या मुंह पे वो फीलिंग नहीं दिखाना, दैट इज कॉल्ड इम्पैसिव। एपैथेटिक, इनडिफरेंट, कोई फीलिंग नहीं होना, दैट इज कॉल्ड इम्पैसिव। नेक्स्ट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। ओके, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है हिंडरेंस, एनी स्ट्रक्चर दैट मेक्स प्रोग्रेस डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट। सो use of lot of social media like your Insta, Snapchat, that is called impediment for your studies, for your competitive examination,
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपके पास कोई ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपका सोशल मीडिया, उसको दूर रहे भैया। ये तैयार रहे कि आप अपने सोशल मीडिया से दूर रहे, तभी जाके ये दुनिया अच्छी बनने वाली है आपके लिए और आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करने वाले हो। अगला वर्ड है इम्पेनिट्रेबल। बहुत सिंपल सा वर्ड है, पेनिट्रेट करना, कोई चीज में यू कैन से पियर्स करना, एंटर करना, ठीक है। सो इम्पेनिट्रेबल दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी पियर्स और एंटर्ड इनटू, ओके, और समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आती है, जो दिमाग में घुस नहीं रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रही है। सो पेनिट्रेट क्या हो गया भैया? कोई चीज में घुसना। पेनिट्रेशन जैसे इंजेक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेट करना, दैट इज हाउ द इंजेक्शन वुड बी, ओके, ठीक है। और अगर मैं उसको फॉर एग्जांपल इफ आई टेक इट टू द क्रिमिनल केसेस, सो नॉन पेनिट्रेटिव रेप के अंदर भी लोगों को सजा हो सकती है, ओके। सो पेनिट्रेशन इज एंटरिंग इनटू एन इम्पेनिट्रेबल समथिंग विच कैन नॉट बी पेनिट्रेबल, ओके। अगला वर्ड है इम्पर्टर्बेबल। पर्टर्ब करना, दैट इज डिस्टर्ब करना। पर्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना। जो जोगी है, जो सन्यासी है, जिसका फोकस बहुत स्ट्रांग है, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? इम्पर्टर्बेबल। ही कैन नॉट बी डिस्टर्ब, ही कैन नॉट बी बॉदर्ड, ओके। इम्पर्टर्बेबल दैट मीन्स उस बंदे को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये अच्छे बच्चे होते हैं जो इम्पर्टर्बेबल है, एग्जाम लिख रहे हैं और आजू बाजू जो बातें चल रही है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर सो मच फोकस्ड अबाउट देयर ओन स्टडीज, ओके। सो दे आर नॉट इजीली बॉदर्ड और डिस्टर्ब, दे आर कॉल्ड इम्पर्टर्बेबल। रूट वर्ड क्या है उसमें? पर्टर्ब करना। पर्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, ओके, ध्यान रखिएगा ये, पर्टर्ब, डिस्टर्ब करना। अगला वर्ड है impetuous, someone who is impulsive, someone who is very much impulsive, someone who is characterized by a kind of action which is doing in haste. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे आर इम्पल्सिव, वो फटाफट उनको जो आता है वो फटाफट कर लेते हैं। सो दे आर डूइंग दैट इन अनड्यू हेस्ट और दे आर डूइंग विदाउट लैक ऑफ थॉट और विदाउट अ प्रॉपर डेलिबरेशन। ऐसे बंदे को बोलते हैं इम्पेट्यूअस, इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है। मेनी टाइम्स ऑल ऑफ अस आर इम्पल्सिव शॉपर्स। क्या बोलते हैं हमको? इम्पल्सिव शॉपर्स। दुकान में जाते हैं, we go and purchase certain things without any deliberation and we simply do it by impetuity, that is a kind of impulsiveness, okay. Next word is called implacable. So there is a word called placate. Placate is a root word, so this is called to placate. Placate का मतलब होता है किसी को pacify करना, okay, किसी को satisfy करना, that is called, you can say, प्लेकेबल, ओके। ऐसा बंदा जिसको आप एक तरीके से कुछ गिफ्ट देकर पेसिफाई कर सकते हो, शांत कर सकते हो। आपने कोई गलती करी और वो आपके ऊपर गुस्से में है तो आप गिफ्ट देकर उसको शांत कर सकते हो। व्हाइल इम्प्लेकेबल बंदा, आप कुछ भी करो, इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर थॉट, ओके। सो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल टू काम डाउन। इनफ्लेक्सिबल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लेकेबल, जिसको आप शांति से प्लेकेट, सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दिस इज हाउ द वर्ड कॉल्ड इम्प्रोबेबल, ओके। प्रोबेबल इज लाइकली, improbable not likely to be true or not likely to occur something, so it's an improbable event, that means वो event कभी होने वाली नहीं है। so that is called improbable, बहुत easy word है। and next word is called impudent. so impudent का मतलब है someone who is shamelessly, you can say, immodest, that means someone is shamelessly bold, okay, क्या बोलते हैं उसको? shamelessly bold, that is called impudent, okay। एक तरीके से वर्ड बनता है brazen, सिमिलर वर्ड है उसका brazen, okay। audacious, ये उसका एक और सिमिलर वर्ड है, ठीक है। एक और वर्ड, मजेदार सा वर्ड है जिसको बोलते हैं chutzpah, okay, that is also called, you can say, someone who is shamelessly bold। ये सब उसके सिमिलर वर्ड बनेंगे। अगला वर्ड है impunity. Impunity, that is giving immunity from detrimental effects or giving exemption from punishment
or loss. So he has been, we can say, provided impunity on this particular charges. इस charges से उसको मुक्ति देना, that is called impunity. फटाफट इसका सेंटेंस बनाइए और मुझे बताइए कि ये सेंटेंस, इस वर्ड को कैसे यूज करना है. नंबर 1, एंड गिव मी एटलीस्ट 2 to 3 सिनोनिम एंड 2 to 3 एंटोनिम ऑफ impunity. बहुत काम का वर्ड है. I want you to work on this word rather than I give you some explanation. You give me some work on it. Okay? Impunity. अगला वर्ड है incipient. Incipient, that is only partly in existent. Okay, so that is called incipient. शुरुआत हो रहा है. Okay, incipient, that is the original incipient of certain thing. That means ये बंदा उस particular चीज का हकदार है, ऐसा भी बोलते हैं. या तो partly in existence, दो तरीके से मीनिंग हो गया. एक incipient, so who is an Nobel Prize incipient. Okay, so that means किसने उसकी शुरुआत करी, किसने उसके बारे में गणित लगाया. और incipient का दूसरा मतलब होगा partly in existence. And then next called incorrigible. वर्ड है corrigible. ओके, corrigible का मतलब होता है करेक्ट करना, रिफॉर्म करना, इंप्रूव करना. ओके, while incorrigible, जो आसानी से करेक्ट नहीं कर सकते, आसानी से उस बंदे को इंप्रूव नहीं कर सकते. he is not easily influenced, he is not easily swayed by anything, और वो इतना रिजिड है. so incorrigible liar, that means वो कभी सुधरने वाला नहीं है. उसको कितना भी डंडा लगा लो, वो हमेशा ऐसा ही करेगा. इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते. सो कॉरिजिबल का मतलब होता है करेक्ट करने के काबिल, और इनकॉरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं वैसा. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग ऑल दिस 20 वर्ड्स. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस 20 वर्ड्स विथ मी. ओके, सो इफ यू हैव लाइक दिस, please put on a like button, share this video to a lot of your friends, and subscribe to our channel. And do not miss out to take practice questions from protalentdigital.com. Okay, protalentdigital.com is now a paid service. वहां पे आपको 10 दिन के लिए फ्री मॉड्यूल मिलेंगे, उसके बाद इट इज अ पेड सर्विस. सो जो भी लोग पेड है प्लीज उसको यूज करिए, जो लोग नहीं है वो फटाफट इसकी पेड सर्विस लीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.